أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على إحسانه کہ اس ذات باری تعالیٰ نے جو ہم نے ایک نیت کی تھی اس پر کام کرنے کی ہمیں توفیق بخشی، اذن بخشا۔ رمضان شریف کے شروع میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم عربی کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن جب پڑھیں تو ہمیں اگر مکمل طور پر نہیں تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں ضرور آ سکے، ہم ایسا ایک کورس ترتیب دیں گے کہ جو زیادہ آسانی کے ساتھ مسلمان بھائی ہمارے سیکھ سکے، بھائی اور بہن ہمارے سیکھ سکے۔ تو آج اس کی کچھ بنیادی گفتگو ہم کرتے ہیں، اور اس کورس کی ترتیب کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم لے کر چلیں گے وہ اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اردو کی 2-3 مثالوں کے ساتھ ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیا جائے۔ ہمارے پاس یہ اب جملہ ہے کہ حسن اسکول گیا، اور یہ جملہ ہے اس کا حسن بے مثل ہے، اور یہ جملہ ہے کہ وہ حسن و جمال کا مالک ہے۔ اب یہاں جو نقطہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ حسن ہے یا یہ حسن ہے، اور ہمیں کسی قسم کے اعراب کی یہاں ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حسن اسکول گیا، اس کا حسن بے مثل ہے، وہ حسن و جمال کا مالک ہے۔ تو حسن اور حسن اور بغیر اعراب کے ہم نے بالکل صحیح جو ہے وہ جملہ پڑھا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، اس نے کپڑا جلا دیا، اس نے جلا بخشی۔ اب یہاں بھی ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ جلا ہے یا یہ جلا ہے؟ ہمیں تو اعراب کی ضرورت محسوس بالکل نہیں ہوئی، اور ہم نے بالکل ٹھیک پڑھا کہ اس نے کپڑا جلا دیا، اس نے جلا بخشی۔ تو ایک لفظ تھا جلا اور ایک لفظ تھا جلا۔ اسی طرح کل کاروبار کا مالک ارشد ہے، کل بارش ہوئی۔ یہاں پھر وہی سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ کل ہے یا یہ کل ہے؟ تو کل کاروبار کا مالک ارشد ہے، کل بارش ہوئی، تو کل اور کل یہ 2 الفاظ تھے، اور ہم نے بغیر اعراب کے ان کو بالکل صحیح پڑھا۔ تو اس بات کو، یہ 3 مثالیں جو ہے وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بنیادی جو کسی بھی زبان کا معاملہ ہے اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور قرآن مجید میں بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اعراب بہت بعد میں لگے ہیں، اور یہ جو موجودہ شکل ہے اعراب کی، جب شروع میں اعراب لگے تھے تو وہ اس سے بھی مختلف ہے۔ شروع میں جو اعراب لگے تھے وہ صرف نقطوں کی مدد سے تھے، اس میں کوئی پیش اور اس میں زبر اور زیر نہیں تھا، نقطوں ہی کے مختلف وہ کمبینیشنز تھے، پیٹرنز تھے، مختلف اس کے انداز تھے جن سے آوازوں کو ترتیب دیا گیا تھا، اور پھر چلتے چلتے موجودہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دور ہے اس دور کے اندر تو نہ اعراب ہوتے تھے اور نہ ہی نقطے ہوتے تھے۔ پھر کیسے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ لکھتے تھے اور کیسے لوگ پڑھتے تھے، اور انہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ کل ہے یہ کل ہے، یہ ساری کی ساری باتیں یہ ہم ان کو کیسے معلوم ہوتی تھی؟ یہ نقطہ بھی جو ہے وہ واضح آپ ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ ہم جب آگے چلیں گے تو آہستہ آہستہ آپ بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مکمل طور پہ آپ اس پہ دسترس حاصل کر لیں گے، کمپلیٹ ایکسپرٹیز آپ کو مل جائے گی، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن بڑی حد تک انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اعراب کی ضرورت بنیادی طور پہ اگر بنیاد ہماری درست ہو تو نہیں پڑتی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جس ترتیب سے ہمیں عام طور پہ چلنا چاہیے اور جس ترتیب کو عام طور پہ پسند کیا گیا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا، جو ہم میں سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑی تعداد نے بچپن ہی میں پڑھ رکھا ہے۔ پھر قرآن پاک پڑھنا، جس کو ہم ناظرہ بھی کہتے ہیں۔ پھر تجوید کے قواعد بڑا اہم ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی اس موضوع پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ہلکی سی بھی تجوید میں اگر
फर्क आ जाए तो उसका मतलब बदल जाता है। और इसकी मैं अक्सर कई बार हम मिसाल ये देख चुके हैं कि जैसे कल्ब जो है वो दिल होता है और कल्ब जो है वो कुत्ता होता है। अब इतना मामूली सा फर्क, तो उससे किस तरीके से जो है अल्फाज और आयात और कोई जुमला जो है उसमें मतलब जो है वो बिगड़ सकता है। इसलिए सही तजवीद सीखना। फिर उसके बाद है कुरान करीम के जो अल्फाज हैं उनके जखीरे पे तवज्जो करना, फिर ग्रामर और फिर तफहीम कुरान। हमारा मसला यह है कि हम जब भी हिम्मत पकड़ते हैं और हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हमें अरबी सीखनी चाहिए, बतौर मुसलमान हमें अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान को पढ़ें तो वो उसके मफाहीम जो हैं और उसके जो मतालिब हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं आहिस्ता आहिस्ता वैसे वैसे खुलते चले जाएं। उसके लिए हम फौरी तौर पे जब कहीं दाखिला लेते हैं तो हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है। और ग्रामर एक ऐसी चीज है जो कि कुछ अरसे में ज्यादातर लोग जो है वो उससे घबरा जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम आज जिस अंदाज में बात करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हम ग्रामर के बगैर 70-80%, 70%, 80% कुरान मजीद जो है वो हम समझने के काबिल हो जाएंगे बगैर ग्रामर के। और फिर जब हमें ये खुशी हासिल होने लग जाएगी कि हम इतना समझने लग गए हैं, तो फिर हमारा दिल चाहेगा कि हम थोड़ा सा कवायद को देख लें, हम ग्रामर को देख लें, ताकि हमें फिर मजीद जो है वो गहराई के अंदर मामला जो है वो समझ में आने लगे। तो कुरान करीम में तकरार के साथ जो कुल अल्फाज हैं वो 78,000 है। अब यहां पे तकरार से हम क्या मतलब ले रहे हैं? तकरार आमतौर पे तो सिर्फ रिपीट करने को कहते हैं, बात को बार बार एक लफ्ज को इस्तेमाल करने को कहते हैं। लेकिन यहां पे हम जो तकरार कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, ज़हन में रखें। वो चीज भी शामिल है और ये भी शामिल है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें कि ये लफ्ज है हाजा, लेकिन यहां पे आप देखें ये लफ्ज है बिहाजा, और यहां पे ये देखें ये लफ्ज है फहाजा। तो हम इसको भी तकरार में शामिल कर रहे हैं। यानी हम ये नहीं कह रहे कि तकरार का मतलब है कि लफ्ज हाजा जो है इतनी दफा आएगा या आया है। हम कह रहे हैं हाजा और बिहाजा और फहाजा, इसमें हर जगह इसको भी हम तकरार में शामिल कर रहे हैं। तो हमारे पास कुल अल्फाज तकरार के साथ जो हैं कुरान मजीद के अंदर वो हमारे पास हमने कहा 78,000 है, 78,000 वर्ड्स। अब बज़ाहिर एकदम लगता है कि यार जब हम अल्फाज का जखीरे पे जाएंगे तो 78,000 अल्फाज तो बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे हम इसको कर पाएंगे? तो इसमें सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि इन 78,000 में से 45% जो अल्फाज हैं तकरार के साथ, वो उनका जो जखीरा है वो सिर्फ 72 अल्फाज है। और वो बड़े बुनियादी अल्फाज है, जैसे मिसाल के तौर पे हाजा है, हुआ है, वह है, बहुत बुनियादी अल्फाज है, 72 अल्फाज। तो अगर ये 72 वर्ड्स, ये जो 72 अल्फाज हैं, हम सीख लें तो 45% अल्फाज कुरान मजीद के जो हैं वो इसी में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 20% जो है कुरान करीम के अल्फाज 100 अल्फाज का जखीरा है, क्योंकि तकरार भी है। नाम है जैसे अस्समा, अल अर्द, अल मलाइका, तो ये 100 अल्फाज का एक जखीरा है जो कुरान करीम की 20%, 20% अल्फाज जो है इसमें इन 100 अल्फाज में पूरे हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास 200 अल्फाज का एक जखीरा है जिससे मजीद 20% जो है कुरान मजीद जो है वो उसमें आ जाता है। और ये है काम जैसे होता है, जैसे दरब, फ़अला, समिअ, ये इस किस्म के अल्फाज है। यानी हम यहां पे अब ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन आप देख लीजिए कि 45%, 20%, 20% के बाद सिर्फ 15% अल्फाज ऐसे रह जाते हैं कि जो इस ये तक 372, देखें ना, 200 जमा 100 जमा 72, सो 372 जो है, 372 या 372 अल्फाज जो हैं, इनके अंदर आप देख लीजिए कि ये हमारे पास कुरान मजीद का सिर्फ 15%, 15% बाकी रह जाता है जो हमारे इल्म में नहीं होगा अगर हम ये सिर्फ 372 अल्फाज सीख लेते हैं। तो सिर्फ 372 अल्फाज सीखने से हम 85%, 85% जो है कुरान मजीद समझ सकते हैं। ये 66,300 अल्फाज बनते हैं, 66,300 वर्ड्स।
अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं कि आपने ये जो हमारे असबाक होंगे उनको लेकर किस तरह से चलना है, ताकि आपको ये बोझ महसूस ना हो और आप बड़ी आसानी के साथ इसमें से आप चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो तरीकाकार है वो क्या होगा। मिसाल के तौर पे, अच्छा, अब हम आपको हफ्ते में 3 बार, एक एक दिन छोड़ के, पीर वाले दिन, फिर बुध वाले दिन और फिर जुमा के रोज हम आपको अल्फाज जो है वो इस तरीके से भेजा करेंगे जैसे ये आपके सामने। इसके अंदर आप देख लें कि सबसे पहले अरबी में लफ्ज दिया गया है, उसके बाद उसका बुनियादी बताया गया है कि किस मकसद के लिए है, और यह भी बताया गया है कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा या मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा या दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और फिर उर्दू में उसका मतलब क्या बनता है। इस तरह से हम एक छोटा सा ज़ख़ीरा अल्फाज का चंद अल्फाज जो है वो आपको भेजेंगे हफ्ते में 3 रोज। अच्छा, लेकिन इन अल्फाज को इस्तेमाल करना किस तरह से है ये समझना जरूरी है। हम इसको इस तरह देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे हमने कहा कि लफ्ज है ज़ालिका। ज़ालिका जो लफ्ज है ये हम कह रहे हैं कि दूर इशारा, दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और यह मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में इसका मतलब है वो। हम अब आपको बताएंगे कि आपने इसको इस्तेमाल करना कैसे है और किस तरीके से इस ज़ख़ीरे को लेकर चलना है। अच्छा, लेकिन आप देखिए कि सीधे हाथ पे यहां पे ये भी लिखा आ रहा है कि कुरान मजीद में ये के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और आगे इसलिए आप देखो हमने क्यों लिखा है इसको जरा समझ लीजिए। ज़ालिका वो का इशारा जरूर है, लेकिन इसको एक और अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है कई बार। सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब ज़ालिकल किताब अगर वो हम कहते हैं तो इसका मतलब है वो किताब, लेकिन असल में यहां पे ये मतलब इस तरीके से नहीं है। ये वो उन माने में होता है जैसे हम कहते हैं ये वो किताब है, जैसे हम उर्दू में भी कई बार कहते हैं ये वो शख्स है जिसने पहला इनाम लिया, ये वो शख्स है। ये इस्तेमाल होता है जैसे किसी चीज की बड़ाई के मानों में, जब हम कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने पहला इनाम हासिल किया, तो ये एक बड़ाई के मानों में है। तो ये वो का इशारा है, लेकिन ये वो का मानी भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो कुरान मजीद में ये के लिए जो इस्तेमाल हुआ वो इन मानों में इस्तेमाल है, तो ये वो किताब है। इसी तरह अल्लज़ीना, तो हमने कहा कि ये दूर के इशारे के लिए है, लेकिन ये मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए है। उर्दू में वो सब जो, तो आम तौर पे जुमले में जब इस्तेमाल होगा तो हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे वो सब लोग जो के मानों में इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब हम कहते हैं उलाइका, तो ये भी दूर के लिए है, और वो, अब यह भी वो है, वो सब है, ऊपर भी आप देख रहे हैं वो सब है। तो फर्क क्या है यहां पे, वो सब उन मानों में वही सब जिसका अभी तज़करा हुआ है, यानी अभी हमने कोई बात की है और अब हम कह रहे हैं कि ये वही सब जिनका अभी थोड़ी देर पहले तज़करा हुआ है इन मानों के अंदर। तो इस तरह से हम बाकायदा आपको ये चीज जो है वो हफ्ते में 3 दिन जो है वो पेश करेंगे। अब इसको आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे इसको देखिए। अब हमने आपको ये 3 अल्फाज भेजे, ज़ालिका ये वो, या वो, अल्लज़ीना वो सब, या वो सब जो, या वो सब लोग जो, उलाइका वही सब लोग। अब आप जब कुरान मजीद खोलेंगे आप इसको पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिका वो, ज़ालिकल किताब वो किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना वो सब जो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वल्लज़ीना और वो सब जो, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, उलाइका वही सब। अब ये वही सब कौन सा है, वो जो पीछे बात हुई है, अल्लज़ीना वल्लज़ीना वो जो है वही सब, अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका और वही सब, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि आप कोशिश करें कि कुरान मजीद जब पढ़ें तो जब वो लफ्ज आए तो वहां रुक जाए, और बाकायदा उसका मतलब जो आपको बताया गया है उसको जहन में लाएं, बेशक जुबान से भी एक दफा कहें, और फिर उस जुमले को पूरा करें। तो इससे ये होगा कि साथ साथ आपको
कुरान जैसे जैसे ज़ख़ीरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुरान के अंदर जब आप इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जुमले जो हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा हम एक और भी काम करेंगे, आपको इस तरह का सबक भी भेजेंगे। मसलन हम कहेंगे कि मिन, इसका मतलब है से, और जिस लफ्ज से पहले आता है उस लफ्ज के नीचे जेर होती है। अब मसलन हम कहते हैं अल किताबु यानी किताब है, अल मस्जिदु मस्जिद, अल मशरिकु मशरिक। लेकिन जब हम मिन का लफ्ज इसके शुरू में लगाएंगे तो ये बे के नीचे आप देखें बा, अरबी में तो बा कहते हैं, तो बा के नीचे जेर हो जाएगा। सो मिनल किताबी, मिनल मस्जिदी, मिनल मशरिकी। तो जब आपको यह पता चल गया कि मिन लगने से आगे जो है उसके आखिरी हर्फ के नीचे जेर आ रहा है, तो जाहिर है कुदरती बात है कि जब कभी कहीं पे बगैर आराब के भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहां पे क्या पढ़ना है। तो जब मिन का मतलब है से, मिनल किताबी का मतलब हो गया किताब से, मिनल मस्जिदी का मतलब हो गया मस्जिद से, मिनल मशरिकी का मतलब हो गया मशरिक से। तो इस तरीके से हम ये दो अंदाज में आपको असबाक भेजा करेंगे। इनको ही बार बार मश्क करना बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप समझते हैं कि भाई हम इसको एक दफा सबक को पढ़ लिया, दो दफा पढ़ लिया, तीन दफा पढ़ लिया और हम समझते हैं कि इससे हमें जो है वो याद हो जाएंगे अल्फाज, तो ऐसा नहीं है। जाहिर है कि हमें इसे बार बार करना होगा। कुरान मजीद की जिन लोगों को पढ़ने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बाकायदगी से शौक से पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वो जब भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर सहूलत के साथ जहां जहां इस तरह अल्फाज आएंगे, तो जैसे अभी हमने अर्ज किया उसी तरह से आप उसका मतलब सामने रखेंगे, बात आपको समझ में आने लगेगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अल्फाज का जखीरा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपकी समझ जो है वो उसमें भी और फहम में भी आपके आप देखेंगे कि इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब देखें कि ग्रामर या तो बिल्कुल नहीं होगी या इतनी मामूली होगी कि जिसे आपको परेशानी नहीं होगी और उलझन नहीं होगी और आप घबराएंगे। मतलब अब जो जिन लोगों ने कभी थोड़ा बहुत अरबी को पढ़ा है, जैसे कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वो छठी सातवीं वगैरह में बुनियादी अरबी थोड़ी सी कराई जाती है, या किसी ने शौक से किसी जगह जाकर थोड़ा सा सीखा है, तो वो देखते हैं कि उसमें गर्दान होती है, फिर गर्दान को पढ़ना, उसको याद करना, वो सारे मामला जो उनसे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हम ग्रामर इतनी कम रखने की कोशिश करेंगे, इतनी कम कि वो एक शौक जो है वो आपका कायम रहे। और जब आप ये 75-80% अबाउट 80% जो है वो कुरान मजीद जो है का जखीरा अल्फाज का समझने लग जाएंगे, उसके बाद आप अपने शौक से फिर इंशाअल्लाह जो है वो बाकी जो 15% है उसकी तरफ भी जो है वो चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, इज़्न अता फरमाए, फहम अता फरमाए, शौक अता फरमाए, ज़ौक़ अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।